सरस्वती माँ तू, राम सागर अधम को आश्रय तू ही दिला तू। मैं अपनी वाणी की शुरुआत माँ सरस्वती की आराधना से करती हूँ। मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उसे पाने का साधन। यह बात उनके द्वारा बोला गया जिन्हें मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला और एल्बर्ट आइंस्टीन जैसी दिग्गज हस्तियां फॉलो किया करती थी। यहाँ तक कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बात कही थी कि generations to come will scarce believe that such a one as this ever in flesh and blood walked upon this earth। यानी आने वाली पीढ़ियां शायद ही यकीन कर पाएंगी कि कोई ऐसा भी इंसान था जो मांस और रक्त से पूर्ण होकर इस धरती पर चला था। भारतीय संविधान, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रमुख तथा आध्यात्मिक नेता महात्मा गांधी जी के विचारों और शिक्षाओं पर मैं अपना विचार प्रस्तुत करूंगी। आज से करीब 154 ईयर्स पहले 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में करमचंद गांधी और पुतलीबाई जी के सबसे छोटे बेटे मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ। पढ़ाई लिखाई और खेलकूद में बहुत साधारण रहे मोहनदास का विवाह मात्र 13 साल की उम्र में उनसे 1 साल बड़ी कस्तूरबा से करा दिया गया। गांधी जी डॉक्टर बनना चाहते थे, पर वैष्णव परिवार में चीरफाड़ की अनुमति नहीं थी। उनको वकालत के लिए बोला गया, तो उनको अपने परिवार को छोड़कर इंग्लैंड रवाना होना पड़ा। 4 साल बाद जब वह भारत लौटे तो राजकोट में अपनी प्रैक्टिस पूरी करी। हालांकि उनको सफलता नहीं मिली क्योंकि कुछ और ही मंजूर था। उस टाइम पे साउथ अफ्रीका में दादा अब्दुल्ला नाम के एक व्यापारी रहा करते थे। उन्होंने गांधी जी को साउथ अफ्रीका में बुलाया क्योंकि वहां पर भी भारत की तरह ही ब्रिटिशर्स का रूल था। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका पहुंचे तो उनको कदम कदम पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। वहां गांधी जी रहे और उन्होंने उसके खिलाफ लड़ाई करी। गांधी जी द्वारा बिताया हुआ साउथ अफ्रीका में समय इतना ही इंपॉर्टेंट था कि उन्होंने अपने भाषण में बोला था कि आई वॉज बोर्न इन इंडिया बट वॉज मेड इन साउथ अफ्रीका। Jai Shri Ram. Good morning, our honorable all guests, our respected principal sir, all teachers, and my dear students and our non-teaching staffs. My heartiest welcome to all of you. Today, we all here assembled to celebrate the International Non-Violence Day. This day is observed on 2nd October, the birthday of Mahatma Gandhi, the Indian independence movement and the pioneer of the philosophy and strategy of non-violence. According to the General Assembly Resolution A by RES by 61-271 of 15 June 2007, which established the commemoration. The International Day is an occasion to disseminate the message of non-violence, including through education and public awareness. The resolution reaffirms universal relevance of the principle of non-violence and the desire to secure a culture of peace, tolerance, understanding, and non-violence. Indian Minister of State for External Affairs, Mr. Anand Sharma, said that the wide and diverse consortium of the resolution was a reflection of the universal respect for Mahatma Gandhi and of the enduring relevance of his philosophy. Non-violence is the greatest force as the dispenser of mankind. It is mightier than the mightiest weapon of destruction divided by the ingenuity of man. So, for the society, I want to say, if any good steps we want to start, we should start it from our homes. For national development, we should start teaching our next generation for non-violence. Nowadays, our lifespan of our human beings is 70 to maximum 90 years. We never think that what we did in our whole life, fighting with each other for our cause, poverty, revenge, and jealousy, for our ego's sake. Our names are not noted
for our noted like a good citizen. We can survive with few things, but day by day, our few things are not enough for us. Our desire and lust increases. Now our country, India, and whole world is suffocated by the violence of terrorists, violence of thieves, violence of murderers, rapists. Whole world is corrupted. So it is our duty to teach the society and spread message of non-violence to the all students who are our next generation. If we want peace, then we have to behave like a good citizen and should develop our country by morality, should give respect to each other's feelings. Our Prime Minister, Mr. Narendra Damodar Modi ji, and our teams, RSS and Bajrangar is trying to heart and soul to eliminate the terrorists and violence from our country, India. Now, here I am stopping my speech and hope our country, India, will be a great success on non-violence. Thank you. Vande Mataram. Bharat Mata की जय। तो माँ शारदे के इस पावन प्रांगण में हम सबसे पहले माँ शारदे का एक श्लोक बोलना चाहते हैं, तो वो है श्री सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। इसी क्रम में हम माँ शारदे को पहले वंदन नमन करते हुए और उनको हम प्रणाम करते हैं और हमारे मंचासीन श्री प्रधानाचार्य जी और हमारे अतिथिगण को हम सत्संग नमन करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं। तो आज हम यहाँ पर आज 2 जयंतियाँ मनाई जा रही हैं, 2 महापुरुषों की। पहले नंबर पे है श्री महात्मा गांधी जी और द्वितीय नंबर पे है श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। तो इनके बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं। ये तो महापुरुष जाने माने हैं, सदियों से कई समय से इनकी बातें चली आ रही हैं। तो महात्मा गांधी जी, जो उनको राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है, जो इनका जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 को यानी 69 को हुआ था। यहीं पर हम द्वितीय नंबर में बात करें तो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को। तो यहाँ पर आज हम 2 जयंतियाँ एक साथ में मना रहे हैं, बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़े खुशी के प्रतीक हैं। तो आज इन्होंने हमारे देश के लिए, विश्व के लिए कई कुर्बानियाँ दी हैं, जो कि हम सभी लोग जानते भी हैं। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि एक सामान्य परिवार से जन्मे हुए थे, लेकिन छोटी उम्र में, सिर्फ 1.5 वर्ष की उम्र में ही उनके पिताजी का देहांत हो गया था। उनके देहांत होने के बाद उनकी माताजी उनको अपने नाना जी के यहाँ ले गई। तो वहाँ रहकर उन्होंने अपनी शिक्षा प्रारंभ की। तो पढ़ते पढ़ते वो तो शिक्षा में उतने अव्वल नहीं रहे, फिर भी उनकी जो एक छवि है पूरे भारतवर्ष में फैली हुई है, जो हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं। उनका एक सर्वश्रेष्ठ नारा है, प्रसिद्ध नारा है, वो है, सभी को पता होगा, जवान जय किसान। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर नारा दिया, जय किसान जय जवान, यानी कि जय जवान। जो ये शब्द है यहाँ पर ये होता है, हमारे देश के जो सूरवीर थे, जो सैनिक थे, उनका बलिदान, उनको शौर्य का सलाम करते हुए जय जवान का शब्द है। और जय किसान, जो हमारे भारत देश में किसान लोग हैं, उनकी जो दिन भर की प्रतिभा की, जो दिन भर का योगदान, उनकी मेहनत करते हैं, उनको सलाम करते हुए तो उन्होंने एक नारा दिया, जय किसान और जय जवान। इसी क्रम में आगे हम बढ़ते हुए भी उनकी, वो क्या थे, देशभक्त थे, राजनीतिज्ञ थे। उनकी छवि आज हम सभी जानते हैं, उनके अंदर सादगी थी, प्रतिष्ठा थी, और क्या नहीं था, ईमानदारी थे। आज उनके चलते हम सभी जानते हैं कि ईमानदार पुरुष थे, जो आज ईमानदारी के चलते हुए आज हम सभी को पता भी है और हम करते भी हैं। और एक सर्वश्रेष्ठ राजनीतिज्ञ के साथ राष्ट्रीय क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे। अच्छा, धन्यवाद। आज के दिन लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था और आपको मालूम है कि देश के प्रधानमंत्री रहे केवल मात्र 18 महीने, और इन 18 महीनों में इन्होंने देश को एक नई राह दी, जय जवान जय किसान। इसी क्रम में मैं अपने वरिष्ठ आचार्य राजू सक्सेना जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ, वो आए। मेरे साथी एवं आज हम महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री 2 महापुरुषों की जयंती मना रहे हैं।
और समझने का प्रयास करें। नया है। थोड़ा समझो, एक बार फिर स्टार्ट करते हैं। युग की जड़ता के खिलाफ, युग की जड़ता के खिलाफ एक इनकलाब है। युग की जड़ता के खिलाफ एक इनकलाब है। हिंद के युवाओं का, हिंद के युवाओं का एक सुनहरा ख्वाब है, एक सुनहरा ख्वाब है। भारतीय संस्कृति, समापन की ओर अग्रसर है। इसी क्रम में प्राथमिक विद्यालय प्रधानाचार्य महोदय श्री राजन जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, वो अपने सुबचनों से ज्ञान की अखंड आयु का मास्टर सरस्वती। इस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान नीरज अग्रवाल जी, मंच पर आसीन सभी वरिष्ठ आचार्य बंधु बहने, समस्त आचार्य बंधु बहने, प्रिय भैया बहन, आज हम सभी अपने दो महान पुरुषों की जयंतियाँ मनाने के लिए यहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना, उनका जीवन, उनके कार्य, क्या क्या कार्य किए। और गांधी जी का तो पूरा जीवन ही देश के लिए समर्पित था। पढ़ाई लिखाई की, विदेश गए, विदेश में भी वहाँ उनका मन नहीं लगा क्योंकि देश उस समय गुलाम था अंग्रेजों के। और फिर उन्होंने कोई भी नौकरी नहीं की और अपने देश में आगे देश की सेवा की। अंग्रेजों ने कैसे कैसे अत्याचार किए, लेकिन फिर भी उन्होंने सब अत्याचार को सहा। बड़े दयालु थे। एक बार एक घटना मैं आपको सुना रहा हूँ। अहमदाबाद में एक सांप्रदायिक दंगा हो रहा था, हिंदू डट के भाग रहे थे। तो गांधी जी ने क्या कहा, मेरी अहिंसा कायरता नहीं सिखाती, कायर मत बनो, डट कर मुकाबला करो। ऐसे भी थे गांधी जी, हिम्मत भी थी और कहते सारा जीवन उच्च विचार। आपने देखा होगा जहां भी चित्र में आप देखते हैं, शरीर पर केवल एक चादर होती थी, एक धोती होती थी, एक हाथ में लाठी होती थी। देश के लिए, हर कुछ देश के लिए उन्होंने देश के लिए समर्पित किया। कोई माया बिल्कुल भी नहीं था। आज उनके परिवार के लोग होंगे, आजकल क्या होता है, कोई नेता बनता है तो उसके रिश्तेदार, उसके परिवार से कितने अमीर बन जाते हैं, फैक्ट्रियां हो जाती हैं। दोनों महापुरुष ऐसे थे। जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई, उसके बाद जब उनके घर की स्थिति देखी तो घर में क्या था, पुराना कूलर, पुराने गद्दे, पुराने बर्तन। और आजकल किसी नेता को देख लो, अगर 5 साल नेता बन गया तो फैक्ट्रियां खड़ी हो जाती हैं। ऐसे थे महान पुरुष हमारे लाल बहादुर शास्त्री। ईमानदार, कर्मठ, कोई अहंकार नहीं। आजकल किसी को छोटा सा पद मिल जाता है तो अहंकार के हमारे, अगर वहां को कोई प्रधानी बन जाता है ना, सोचता कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मैं हूं जो कुछ हूं। तो इतने महान बनने के बाद भी कोई अहंकार नहीं। एक बार एक काफिला इनका गुजर रहा था कहीं से, रेलवे फाटक पर, फाटक बंद कर दिया गया। उनके व्यक्ति ने कहा, भाई देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनका काफिला जा रहा है, गेट खोलो। लेकिन उस व्यक्ति ने, गेट कीपर ने गेट नहीं खोला कि नहीं, कोई भी हो गेट नहीं खुलेगा। जब ट्रेन मिल गई तो लाल बहादुर शास्त्री ने उस व्यक्ति को बुलाया, उससे पूछा, भाई तुमने गेट क्यों नहीं खोला? तो व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मैं आप जानता हूं कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ये ट्रेन नहीं जानती कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए मैंने अपने कर्तव्य को निभाया है। आप जो सजा दे सकते हैं मुझे दीजिए, मुझे आप नौकरी से निकाल सकते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने उसको पुरस्कार दिया, कहा कि जब तक हमारे देश के अंदर ऐसे कर्मठ व्यक्ति होंगे, हमारे देश का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।